یہ 2005 سے لے کے اب تک 8 خرب 17 ارب درود پاک ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت سا مرکز ہے، منہاج کا مرکز ہے لاہور میں، جو یہاں پر جو بزرگ ہیں وہ اپنے انوکھے گیٹم میں، اپنے انوکھے انداز میں مسلسل درود شریف پڑھ رہے ہیں کہ یہ جبے بھائیوں کو گفٹ کر دیے جاتے ہیں یا رکھ لیے جاتے ہیں؟ یہ جو ہم جبے ہیں یہ ہم ادھر ہی رکھتے ہیں، یہ اپنے سادہ سوٹ میں آتے ہیں تو یہ ہم ان کو پہناتے ہیں یہاں پہ۔ ہم 31 تاریخ کو اگست کو آئے تھے اور صبح 10 تاریخ ہمارا آخری ٹائم ہے۔ ہم 8 گھنٹے درود پاک پڑھتے ہیں اور الحمدللہ یہاں کا ماحول، اور میں کہتا ہوں کہ زندگی میں یہ 10 دن جو ہے نا یہ عجیب ہے۔ ان 10 دنوں میں پہلی صف میں ہم نے نماز پڑھی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مادیت سے بچانے کے لیے اور روحانیت کا رنگ چڑھانے کے لیے یہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اندر یہاں گوشہ درود السلام کے علاوہ کہیں اور کوئی مرکز نظر نہیں آتا۔ تو یہ 18 ہی کیوں چنے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا ہی بندوبست ہے، 3 کمرے ہیں، اس میں 6 لوگوں کی گنجائش ہے جو ہماری رہائش ہے۔ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو نیشن کو، قوم کو بناتا ہے، جو قوم کی تربیت کرتا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب واحد لیڈر ہیں جو اس قوم کو قوم بنا رہے ہیں۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران علی خان۔ اللہ کی عبادت کرنا، درود شریف پڑھنا یقینی طور پر سکون کا باعث ہوتا ہے۔ ایک ایسی جگہ کا آپ کو وزٹ کروائیں گے جہاں پر اب تک 8 خرب مرتبہ درود پاک پڑھا گیا ہے۔ بزرگ جو کہ انوکھے انداز میں، انوکھے گیٹم میں بیٹھ کر یہاں پر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس جگہ کا قیام جو ہے وہ 2005 میں ہوتا ہے اور اب تک اس جگہ پر 8 خرب سے زائد مرتبہ بزرگوں نے درود پاک پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت سا مرکز ہے، منہاج کا مرکز ہے لاہور میں، جو یہاں پر جو بزرگ ہیں وہ اپنے انوکھے گیٹم میں، اپنے انوکھے انداز میں مسلسل درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سب بزرگوں سے جانتے ہیں کہ اب تک کتنی مرتبہ یہ ڈیلی کا درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں بہت بڑی بڑی تسبیحیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحیں نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی تسبیحیں ہیں۔ اور یہ بزرگ جو ہیں وہ ڈیلی درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھ کے یہاں پر کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ یہ ملک کے مختلف علاقوں سے بزرگ آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو یہاں پر درود شریف پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے یہ نیک بندے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں تسبیحیں جو ہیں یہ چھوٹے دانوں والی نہیں ہیں۔ عام تسبیح جو ہوتی ہے وہ 33 دانوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی بڑی لمبی لمبی تسبیحیں ہیں جو یہاں پر بزرگ بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور یہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ انوکھا گیٹ اپ ہے، انوکھا انداز ہے، اور ماشاءاللہ درود شریف جو ہے، درود پاک جو ہے وہ ابھی تک پڑھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر کرم۔ ماشاءاللہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ جی الحمدللہ، یہ ہے گوشہ درود۔ گوشہ درود کا آغاز حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کا آغاز 1 دسمبر 2005 میں کیا۔ یہ ہے گوشہ درود جہاں 24 گھنٹے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو گوشہ نشینان آئے ہوئے ہیں یہ ہر 10 دن کے بعد یہ چینج ہوتے ہیں، ہر 10 دن کے بعد 18 لوگ آتے ہیں۔ یہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں یہاں پہ، اور یہ یہاں پہ ان کی 3 شفٹ ہوتی ہیں، شام 4 سے رات 1 بجے تک، رات 1 سے صبح 8 اور صبح 8 سے شام 4 بجے تک۔ یوں یہ 3 گروپ 6 کے حوالے سے یہ 3 شفٹیں بن جاتی ہیں، تو یوں 24 گھنٹے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ، اور ڈیلی یہ ایک قرآن پاک بھی ختم کرتے ہیں، یعنی ڈیلی 10 سپارے 3 حلقہ جات، یہ ڈیلی ایک قرآن پاک یہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کا تعارف بھی کروائیں گے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گیٹ اپ، بڑا انوکھا گیٹ اپ کیا ہوا ہے ان تمام لوگوں نے۔ یہ ماشاءاللہ جی ہمہ وقت وضو میں رہتے ہیں اور 8 گھنٹے کی، جیسا کہ ہمارے فاضل بھائی نے بتایا ہے، ان کے حلقے میں ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرا حلقہ آ جاتا ہے، اس کا وہی پیریڈ شروع ہوتا ہے 8 گھنٹے کا۔ یہ حلقہ کیا ہوتا ہے؟ حلقہ 8
7 लोगों का एक ग्रुप होता है, 6 लोगों का ग्रुप की सूरत में पढ़ते हैं। ग्रुप की सूरत में, उनमें एक कुरान करीम ख़त्म होता है और आपने इसी की तिलावत, और उसके बाद नमाज़ों के वक्त हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते हैं। ये 2005 से लेके अब तक 8 खरब 17 अरब दुरूद पाक हम पढ़ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 9,000 कुरान करीम हम इस वक्त तक पढ़ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़े में होते हैं। रोज़े के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त तक हमारे 10,000 गोशा नशीन अब तक हो चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये गेटअप के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। माशाल्लाह, ये जुब्बे हैं, ये हमारे अम्बिया की, जैसे अम्बिया को उस वक़्त का लिबास था, पहनाया जाता था, ये जुब्बे, और इसी की तरह इनके नीचे जो है वो भी जुब्बा है, ऊपर इनके टोपी है, और ये इसी हालत में यहाँ बैठते हैं। फिर जब 8 घंटे का वक्फा होता है, उसके बाद हम हल्का तब्दील करते हैं, उसके बाद फिर नए लोग आते हैं, वो भी इसी तरह वो भी 8 घंटे इसी रिदम के साथ पढ़ते हैं। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मंजर है, क्या खूबसूरत लोग हैं, और मुख्तलिफ हलकों की सूरत में, मुख्तलिफ ग्रुप की सूरत में दुरूद पाक पढ़ा जाता है। हम यहाँ पर मौजूद दोस्तों से, साथियों से जानेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत है जी, मेहरबानी। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? जी अब्दुल गफूर नाम है जी, गरीबवाल विलेज है, तहसील पिंडदान खान, जिला जेलम है। हम 31 तारीख को अगस्त को आए थे और सुबह 10 तारीख हमारा आखिरी टाइम है। हम 8 घंटे दुरूद पाक पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल, और मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में ये 10 दिन जो है ना, ये अजीब है। इन 10 दिनों में पहली सफ़ में हमने नमाज पढ़ी है, तकबीर उला के साथ पढ़ी है, और किसी नमाज पर भी किसी की सुनते नहीं कज़ा हुई, इशा हो या असर हो, वो अमूमन लोग सुनते भी छोड़ देते हैं, हमने वो सुनते भी और बाजमात नमाज पढ़ी है। बहुत अच्छा माहौल है, और हमारी तरबियत के लिए हर रोज़ असर के बाद मगरब तक एक स्कॉलर आता है जो हमें रोज़मर्रा के मामलात और शरई मामलात वो समझाते हैं। आप बताएं जी, क्या तब्दीली आई है शख्सियत में इन 10 दिनों में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहिब मद्ददिल्लहु, उनका इस उम्मत पे इस दौर में बहुत बड़ा एहसान है। हम सारे और उम्मत मुस्लिमा उनको सैल्यूट पेश करती है कि ये वो दौर है जो मादियत का दौर है, फितनों भरा दौर है, नफसानियत का दौर है, तलब दुनिया का है, हिर्स, हवस, तमा, लालच, गुनाह। इस माहौल के अंदर इस तरह का रूहानी माहौल देना ये लायक तहसीन है, और शायद इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मादियत से बचाने के लिए और रूहानियत का रंग चढ़ाने के लिए ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के अंदर यहाँ गोशा दुरूद सलाम के अलावा कहीं और कोई मरकज़ नज़र नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं है कि गैर मुस्लिम ताकतें आज भी वो इस उम्मत मुसलमा को कमज़ोर करने के लिए जहाँ कई हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ इससे इश्क़ रसूल की शमा को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इकबाल ने कभी कहा था कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो वो गैर मुस्लिम आज भी चाहता है कि रूह मोहम्मद जो इश्क़ रसूल है उम्मत के दिल से निकाल ली जाए, और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने आज वो इश्क़ रसूल की शमा को न सिर्फ बुझने नहीं दिया बल्कि इसको फ़रोग़ दिया है। इंशाअल्लाह यहाँ से जब जाएंगे तो हमने इरादा कर लिया है कि हर रोज़ कम अज़ कम हर रोज़ इंशाअल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हम 1000 मरतबा कम अज़ कम दुरूद शरीफ हर रोज़ पेश किया करेंगे, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह अपनी नस्लों को इंशाअल्लाह इस मिशन के साथ जोड़ेंगे और इस मिशन का ग़ुलाम बनाएंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जब बंदा मुस्तफ़ा का हो जाता है तो खुदा भी उस बंदे का हो जाता है, कायनात भी उस बंदे की हो जाती है। अल्लाह पाक हमें इश्क़ रसूल की शमा जलाए रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब की मोहब्बत में रंगे हुए ये लोग, ये बुज़ुर्ग, अल्लाह के नेक बंदे जो मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, बुज़ुर्गों क्या कैफियत है, क्या कैफियत है इन 10 दिनों में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा ये तीसरी दफ़ा यहाँ पे आना हुआ है। मैं अल्लाह के हजूर शुक्र बजा लाता हूँ कि उस ज़ात अक़दस ने मुझे यहाँ पे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाई, और जो आने वाली ज़िंदगी है उसका भी एक बता दिया कि वो मैंने कैसे बसर करनी है। जैसे कारी साहब बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम घर जाकर भी हर रोज़ 1000 दफ़ा इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इस उम्मत की फलाह के लिए
अपना तन मन धन लगा देंगे। आप कहाँ से आए हैं जी? माशाल्लाह। जी गरीबवाल तहसील पिंड दादन खान ज़िला जेहलम, अजीज़ुर रहमान नाम है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि अपने हबीब के हजूर हाज़री के लिए हम पहुँच गए हैं। और हम वक़्त के मुजद्दद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें बचा लिया है। इस पुरफितन दौर में हम गुनाहों में लत-पत थे, सारी ज़िंदगी गफलत में गुजारी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ हाज़िर हुए हैं और हमें महसूस हुआ है कि हम बहुत चेंज हो गए हैं। और सिर्फ हम चेंज नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी चेंज हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और आइंदा भी वादा किया है कि इंशाअल्लाह साल में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर हाज़िर होंगे और लोगों को भी बताएंगे कि इस दुनिया के पुरफितन दौर में यहाँ हाज़िर होकर अपना मन रोशन करें, माशाल्लाह अल्लाह के गुलामी जोड़ें। एक और हमारे बुजुर्ग हैं जी, सलीम अल्ताफ़ साहब। माशाल्लाह आप भी बड़ी दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं तहसील पिंड खान ज़िला जेहलम जुताना गाँव है मेरा। ठीक है, पूरा हल्का लेकर आए हैं आप? हम तकरीबन तहसील पिंड खान से 15 आदमी तशरीफ़ लेकर आए। क्या कैफियत होती है जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और यहाँ पर 10 दिन वक्त गुजारते हैं? माशाल्लाह जी, कैफियत तो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास इनाम है जिसने हमें तौफीक दी कि 10 दिन अल्लाह की बरगाह में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद शरीफ पढ़ा। और दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। और ये महसूस होता है कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नवाज रहे हैं। यहाँ की इंतज़ामिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी का बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, जो इस भटके हुए लोग थे हम, जो हमें इस राह पे गमज़न किया। यहाँ माशाल्लाह सब लोग रोज़े में रहते हैं और इंतज़ामिया की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की तरफ से सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त होता है। और बहुत शायद ये हकीकत है कि ऐसी सहरी अफ्तारी हमें घर में भी नहीं मुयस्सर होती। ये कैफियत अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। ये सब दोस्त हैं, यहाँ से मुड़ के जाएँ, अल्लाह पाक इनकी दीन दुनिया संवार दे। माशाल्लाह। एक सवाल पूछना चाहूँगा, इंसान गलतियों का पुतला है, गुनाहगार है। आपने कहा सलाम का जवाब मिलता है, तो अंदर की क्या कैफियत होती है जब महसूस होता है कि मेरे सलाम का जवाब मिल गया है? दिल को इत्मीनान हो जाता है। वो दिल भी बोलता है जी और आंखें भी बरसती हैं कि तवज्जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। क्या बात। तो वो कैफियत यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ होती है। शख्सियत में तब्दीली भी आ जाती है? लाजमी है जी, उसके अखलाक में, उसके किरदार में, उसकी सोच में, फ़िक्र में तब्दीली आती है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जुब्बे भाइयों को गिफ्ट कर दिए जाते हैं या रख लिए जाते हैं? ये जो हम जुब्बे हैं ये हम इधर ही रखते हैं। ये अपने सादा सूट में आते हैं तो ये हम इनको पहनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 दफ़ा हम इनको जुब्बे पहनाते हैं। ये सब्ज़ कलर का जुब्बा ये उस वक्त पहनते हैं जब इनकी ड्यूटी शुरू होती है, जब ये दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए आते हैं, ताकि पता चल सके ये 6 लोग हैं तो ये दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उनकी ड्यूटी के वक्त इनकी एक निशानी है। ठीक है। कितना टारगेट रखा जाता है एक दिन का? डेली ये जो गोशा नशीनान है, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये 5000 मरतबा डेली दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि इनका इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। दुरूद व सलाम पढ़ना है, नमाज़ें पढ़नी है। यहाँ पे तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन और फ़र्ज़ नमाज़ें सारी की सारी पढ़ी जाती है माशाअल्लाह। एंड पर मैं इस शेर के साथ इस इंटरव्यू का इख्तिताम करूँगा कि तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए वो हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो ख़तरा तो आगाज़ बदल डालो। यहाँ पर आकर लोग आगाज़ करते हैं एक नई ज़िंदगी का और वो बेहतरीन इंसान बनकर यहाँ से वापस जाते हैं और मुआशरे में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी शख्सियत से। फ़िलहाल यहाँ से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।